Good morning, children. So in our previous lecture we have learnt about energy, its types and the formula for kinetic energy and potential energy. So in this chapter we are going to study about the transformation of energy and few numericals on power. We are also going to discuss about power. Okay, so let us start the lecture with a numerical. A load of mass 5 kg was lifted up by a pulley to a height of 0.8 meters for pile work. The value of G is given as 9.81. Children, if it is given 9.8, then you are supposed to use 9.8, but in some questions it may also be given something different. For example, in this question it is given as 9.81 meter per second square. So wherever the value is given like this, you are supposed to use like that, right? So what is the potential energy of the load? So as we discussed in our previous lecture that kinetic energy is given by half mv square and potential energy is given by mgh. Now a load of 5 kg is lifted up to a height of 0.8 meters, right? So what form of energy it is having? It is having potential energy. So mass is given 5, G is given 9.81, जो भी दिया है वो यूज करेंगे, and height is given as 0.8 meters. So solving it comes out to be 39.24 joules. That will be your answer, right? So now we'll discuss about the transformation of energy, right? So before we discuss the transformation of energy, we will discuss the most important law of conservation of energy. So according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. It can only be transferred or converted from one form into another. Total energy कभी भी किसी भी सिस्टम की ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू? यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू another, and this is the famous law of conservation of energy, right? The total energy before and after the transformation always remains same. ये same word बहुत important है. हमेशा किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या रहता है? जो पहले था वही रहता है. टोटल एनर्जी नेवर एवर चेंजेस, and this conversion is called as transformation of energy. The conversion of energy from one form into another is called transformation of energy. So when energy is converted from one form to another, the total energy always remains same ही रहने वाली है हमारी टोटल एनर्जी. सो बहुत बार न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, आपको दे देंगे इतना एनर्जी कम हुआ, ज़्यादा हुआ, पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक का पोटेंशियल में हुआ, बताओ टोटल एनर्जी है विल इंक्रीज और डिक्रीज. सो हमेशा याद रखो इन सच क्वेश्चंस हमें ना डिक्रीज लिखना है ना इंक्रीज लिखना है, क्योंकि किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. तो जो पहले था टोटल एनर्जी वही इंटरमीडिएट स्टेप में रहेगा और वही एंड में रहेगा. सो द टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन same, right? For example, this is the example is to explain that the total energy always remains same. Let an object be allowed to fall. किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से फॉल कराया गया, falling freely from a height. At the start the potential energy is more. क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ था? हाइट पर था, तो कौन सा एनर्जी होगा उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी होगा. As it falls down, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी. और जब वो गिर रहा है नीचे की तरफ, सो पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, द काइनेटिक एनर्जी इज लार्जेस्ट. जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी? इट विल बी मैक्सिमम. एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज द लीस्ट. और पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी और जीरो भी हो सकती है. बट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर. समझो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम था 10, तो पहले पोटेंशियल कितनी थी? 10, काइनेटिक थी 0. थोड़ी देर बाद पोटेंशियल हो गई 6, काइनेटिक हो गई 4. थोड़ी देर बाद पोटेंशियल हो गई 4, काइनेटिक हो गई 6.
थोड़ी देर बाद पोटेंशियल हो गई 0, काइनेटिक हो गई 10, लेकिन सारे ही केसेस में एडिशन क्या आएगा, 10 ही आएगा. दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट नंबर. द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी. और इसी सम को हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी. राइट, सो वी कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. तो ये एक कैनन है and say suppose something is getting fired from the cannon, something is getting fired from the cannon. So जिस वक्त वो कैनन में से फायर हो रहा है, what form of energy it is having? It is having chemical energy. केमिकल एनर्जी है. केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में. मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं. जब ये केमिकल एनर्जी, जब समझो तोप में से बारूद का गोला निकला, जब उसमें से फ्यूल, मिसाइल में से कोई भी फ्यूल का या कोई बॉम्ब हमने कहा कि एक्सप्लोड हुआ, उस वक्त कौन सी एनर्जी थी, केमिकल. किसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में. अभी पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 5. लेट अस से पोजीशन नंबर 1 में केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अभी जो भी इनका वैल्यू था, जैसे जैसे 1 से 2 पर पहुंचेगा एक्सप्लोजन के बाद, ये जो भी पार्ट है कैनन का, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस काइनेटिक एनर्जी मोर पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती चलेगी. 3 पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी मैक्सिमम, क्योंकि उसने मैक्सिमम हाइट ले ली. और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो गई, ऑलमोस्ट 0, क्योंकि यहां से क्या शुरू हो गया, फ्री फॉल शुरू हो गया उसका. काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस, मिनिमम वी कैन से. हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस. जैसे ही ये 3 से 4th नंबर पर आया, 4th वाली पोजीशन पे आया, तो क्या होगा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. और आते 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 यहाँ पर समझो ये एक्सप्लोड हो गया. एक्सप्लोड होते होते फिर से पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट कम होती चली गई तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0. अब क्या बची उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी. और वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई. और जहां पर भी ये बॉम्ब जाकर गिरेगा वहां पे एक्सप्लोजन होगा, तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट. एक्सप्लोजन हुआ वहां पे. तो हम यहाँ से देख सकते हैं एनर्जी कैन नॉट, क्या तुमने एनर्जी बनाई, नहीं बनाई, यू हैव नॉट क्रिएटेड एंड यू हैव नॉट डिस्ट्रॉयड. बिकॉज पहले क्या थी, केमिकल एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक और पोटेंशियल में. काइनेटिक और पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में. तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है. ना ही तो तुम कोई नई एनर्जी बना रहे हो और ना ही तुम कुछ एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. इट इज जस्ट चेंजिंग द फॉर्म्स. ये सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रही है, इट इज जस्ट चेंजिंग द फॉर्म्स. राइट, इट इज चेंजिंग द फॉर्म्स एंड इट इज not getting created nor it is getting destroyed. It is only changing the form. सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म को चेंज कर रही है एनर्जी. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. राइट, फॉर एग्जाम्पल रोलर कोस्टर, वेरी वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल. रोलर कोस्टर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जैसे रोलर कोस्टर में समझो ये आपका राइड है, आपने यहाँ से शुरू किया ए हाइट से, क्योंकि ए देखो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, 72. ओ माय गॉड, दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू. 72 मीटर ऊपर तुम ये अपने यहाँ से तुमने राइड लेना शुरू किया. तो ए पॉइंट पे क्या थी तुम्हारे पास, पोटेंशियल थी. जैसे जैसे तुम बी पॉइंट पर आए, बी पोजीशन पे आए, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या थी, वेरी वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी. The moment you came from A to B, this potential energy is getting reduced and you have very high value of kinetic energy. Although B point पे भी क्या होगा, उसके पास potential energy तो होगी क्योंकि कुछ height है यहाँ पर भी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. अभी देखो B से ये लूप लेके तुम्हारा रोलर कोस्टर फिर से कहाँ पहुंच गया, C पे. तो C पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक कम होगी. जैसे इसने वापस आना शुरू किया, पोटेंशियल क्या हुई, रिड्यूस होने लगी और काइनेटिक इंक्रीज होने लगी. फिर से तुम यहाँ पे पहुंचे, हमने इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी. फिर से काइनेटिक से जब तुम ऊपर गए पोटेंशियल, जब तुम नीचे आए काइनेटिक, और होते 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 ई पर, एफ पर, जी पर एंड ऑल,
राइट। काइनेटिक एनर्जी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम वैल्यू ही रहेगी, राइट। हर एक पॉइंट पे यहाँ भी टोटल सेम, यहाँ भी टोटल सेम, यहाँ भी टोटल सेम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं चेंज होने वाली। सो हर एक राइड, हर एक लूप के साथ रोलर कोस्टर में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो रही है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी वही रहती है, बिकॉज इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड योर काइनेटिक एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो देखो, रोलर कोस्टर का ही इसमें एग्जांपल दिए। जब भी आप जा रहे हो रोलर कोस्टर में या किसी भी ऐसे राइड में जिसमें क्या है, अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत सारे, तो इसी का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, द स्लाइड इज वेरी लाइक इट इज अ रिसर्च बेस्ड स्लाइड। सो अगर आप रोलर कोस्टर में जिस वक्त जा रहे होते हैं उसको हम वेवी फॉर्म में देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द टॉप, इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एवरी टाइम टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। देखो यहाँ पे जब चलना शुरू किया, फ्री फॉल होना शुरू हुआ नीचे की तरफ, काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, दोनों को ऐड कर दो 6 लाख जूल्स। बाद में काइनेटिक कितनी हो गई, 2 लाख, पोटेंशियल हो गई 4 लाख, टोटल 6 लाख ही रहा। बाद में काइनेटिक इंक्रीज हो गई, देखो ये डिक्रीज थी, ये इंक्रीज हुई, ये इंक्रीज हुई तो ये डिक्रीज हो गई, लेकिन टोटल क्या रहेगा 6 लाख। फिर से ये मैक्सिमम हो गई और ये 0 हो गई, तो भी सम कितना रहेगा 6 लाख। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंजर्व्ड, राइट चिल्ड्रन। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी कोई बॉडी है, वो से अ बॉडी इज डूइंग वर्क ऑफ 10 जूल। हमने बोला एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है, ए पर्सन एंड बी पर्सन। ये 10 जूल कर रहा है 2 मिनट्स में और ये 10 जूल ऑफ वर्क कर रहा है 1 मिनट पे। किसकी पावर ज्यादा है? ऑब्वियसली तुम बोलोगे भाई बी पर्सन तो बहुत फास्ट है। सेम 10 जूल में ए को 2 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन बी को कितना लग रहा है? सिर्फ 1 मिनट लग रहा है। तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर ज्यादा है और इसकी पावर काम करने का जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना फास्ट कोई काम करता है, वो हमें किससे पता चलता है? पावर से पता चलता है। सो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की स्पीड कितनी है। रेट मीन स्पीड कितनी है, कौन कितना फास्ट काम करता है, दैट इज गिवन बाय द पावर ऑफ द पर्सन, राइट। इफ W इज द वर्क डन, देन पावर इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन टाइम। और एक और फॉर्मूला पावर क्या होता है, क्योंकि वर्क डन क्या है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी होगी तभी वर्क डन होगा, राइट। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम एज वेल एज द वर्क डन अपॉन टाइम, right? So the SI unit of power is watt. 1 watt, the power is said to be, किसी भी मशीन का पावर 1 watt क्या होता है? If that machine is doing 1 joule of work in 1 second. So 1 watt is equals to 1 joule per second. 1 किलोवाट। आप बोलते हो कि हमारे गीजर का जो पावर है, गीजर का पावर है 1000 वाट। जनरली गीजर का पावर कितना होता है? 1000 वाट होता है। एसी का पावर कितना होता है? 1500 वाट होता है। तो इसका क्या मतलब है? तुम्हारा गीजर 1000 जूल्स ऑफ वर्क कर रहा है इन 1 सेकेंड एंड एसी क्या कर रहा है? 1500 जूल्स इन 1 सेकेंड। सो हुज पावर इज मोर? एसी का पावर इज मोर देन गीजर का पावर। सो इसको हम किलोवाट को KW भी लिखते हैं, 1000 वाट और 1000 जूल पर सेकेंड। सो यू ऑल्सो गेट न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, right? There is a commercial unit of power and commercial unit of energy also. Actually it is commercial unit of energy only, commercial unit of energy. So what is commercial unit of energy? kilowatt hour. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका पावर है 1 किलोवाट और उसको हमने 1 घंटे तक यूज किया, राइट? 1 किलोवाट आवर इज एनर्जी यूज फॉर 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी अभी हमने पढ़ा है कि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर इनटू टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मशीन जिसका पावर है 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, उसको हमने 1 घंटे तक यूज किया तो ये क्या हो जाता है? किलोवाट आवर। मतलब 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1 आवर को कन्वर्ट कर लो सेकेंड में, 1000 इंटू 3600 सॉल्व करके 3 6 एंड 5 टाइम्स जीरोज,
इसको हम क्या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, 3.6 इंटू 10⁻⁻6, राइट, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, क्योंकि वॉट इंटू सेकेंड, 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो वॉट इंटू सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, वॉट इंटू सेकेंड को हम लिख सकते हैं जूल। सो 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन होम्स इंडस्ट्रीज इज एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर, राइट। 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथ का 200 यूनिट्स का आता है, 200 यूनिट्स का मतलब तुमने कितना यूज किया है, तुमने 200 किलोवाट आवर यूज किया है। यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देखोगे खोल के तो उसमें होता है आपने इस मंथ में 300 यूनिट्स यूज किया है। तो 1 यूनिट हेयर मीन्स 1 किलोवाट आवर, right? So you may get numerical on the basis of power also. Say the question says if little Nelly Newton lifts her 40 kg body at a distance of 0.25 meter in 2 seconds, then what is the power delivered by little Nelly's biceps? तो कितना उसने पावर यूटिलाइज किया, कितने हाइट तक गई वो 0.25, कितना वेट है उसका 40 सेकेंड, और कितनी देर में चले गए 20 सेकेंड्स में। सो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द गिवन, राइट। सो व्हाट इज द m गिवन 40 kg, व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन और हाइट गिवन 0.25 मीटर्स, टाइम गिवन 2 सेकेंड्स, राइट। सब पावर के लिए हम क्या निकालेंगे, हमें पावर निकालना है तो वर्क डन पता होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस। अभी F मतलब mg इंटू एस, m का वैल्यू, g का वैल्यू और s का मतलब डिस्टेंस यहाँ पे। सो डिस्टेंस और हाइट इज 0.25, सॉल्व कर लिया, ये आ गया ऑलमोस्ट 100 जूल्स। सो वर्क डन इज 100 जूल्स। वी नो दैट पावर इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन टाइम। सो 100/2 दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ नेली, पावर ऑफ नेली इज 50 watts. So that is how you can get numericals on power. I hope you understood this. Thank you children. In our next lecture, we will solve the questions of your textbook. Thank you so much.